الیکشن جیتنے کے بعد 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا اپنے حلقے انتخاب میں اہل علاقہ سے خطاب۔ کہتے ہیں 8 فروری کا سورج مسلم لیگ نون کی کامیابی کے ساتھ طلوع ہوگا۔ حمزہ شہباز نے NA 118 اور PP 147 کے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح بھی کیا۔ 118 اور PP 147 کے مرکزی دفتر کی افتتاحی تقریب ہوئی۔ لیگی امیدوار حمزہ شہباز نے خصوصی شرکت کی۔ حمزہ شہباز کی آمد کی خوشی میں گھوڑوں کا رقص، آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ رہنما اور امیدوار حمزہ شہباز نے کہا کہ آئندہ الیکشن پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں۔ شہباز شریف نے شب و روز محنت کر کے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ نوجوان جن کے پاس روزگار نہیں ہے، فکر کی بات نہیں، انشاءاللہ 8 فروری کو جب یہ جیتے گا تو ان نوجوانوں کو جھوٹے دلاسے نہیں بلکہ لیپ ٹاپ دیں گے انشاءاللہ۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف کی حکومت بنی تو ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ اب پھر سے مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو 300 یونٹ تک مفت بجلی دیں گے۔ 8 فروری کا سورج شیر کی فتح کے ساتھ طلوع ہوگا۔ یہ معیشت جب 2013 میں مسلم لیگ نون کو ورثے میں 1.9% شرح ترقی ورثے میں ملی، اور جب 2018 میں ہم نے حکومت چھوڑی تو 1.9% گروتھ ریٹ کو ہم نے اللہ کے فضل سے 6.2% پہنچایا۔ لیگی امیدوار حمزہ شہباز کہتے ہیں PTI دور میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، سعد رفیق، سلمان رفیق، احسن اقبال، حافظ نعمان اور مجھ سمیت دیگر رہنماؤں پر جھوٹے مقدمے بنائے گئے۔ تاہم مسلم لیگ نون بدلے کی سیاست نہیں کرے گی، لیکن گھڑی اور 190 ملین کے ڈاکے ڈالنے والوں کا احتساب ضرور ہوگا۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ حلقہ NA 119 میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑا بریک تھرو۔ PTI کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور حامی مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار۔ PTI کے ٹکٹ ہولڈر مہر محمد وسیم اپنے ہزاروں کارکنان سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے، جبکہ مہر محمد وسیم اور ان کے ساتھیوں کا حلقے میں مریم نواز کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ مہر محمد وسیم کی مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی۔ پرویز رشید، مریم اورنگزیب، علی پرویز بنی، خواجہ عمران نذیر اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ حلقہ NA 119 میں مسلم لیگ نون کے لیے بڑا بریک تھرو۔ PTI کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار اور حامی مسلم لیگ نون کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ PTI کے ٹکٹ ہولڈر مہر محمد وسیم اپنے ہزاروں کارکنوں سمیت مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ مہر محمد وسیم اور ان کے ساتھیوں کا حلقے میں مریم نواز کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے اپنے حلقہ انتخاب آمد، لیگی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف نے سابق مشیر سے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف گجمتا پہنچے۔ انہوں نے اپنے انتخابی حلقہ میں رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق گفتگو ہوئی۔ شہباز شریف سابق مشیر شبیر احمد عثمانی کے گھر بھی گئے اور ان سے بھائی کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز، سابق MPA اختر حسین بادشاہ بھی ہمراہ تھے۔ اکبر حسین، صغیر پائٹ اور دیگر بھی موجود تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی عام انتخابات کے حوالے سے انتخابی مہم جاری ہے۔ امیدوار برائے PP 150 میاں وقاص باکسر کے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں عمیر افضل سے۔ جی عمیر، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ 8 فروری کو جو ہے ملک بھر میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے حلقوں میں ڈور ٹو ڈور کمپینز کر رہی ہیں، مختلف کارنر میٹنگز کا انعقاد کر رہی ہیں، جلسوں کا انعقاد کر رہی ہیں۔ اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں PP 150 سے میاں وقاص باکسر، جو کہ اپنے حلقے میں جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ عوام کی جو ہے وہ اکثریت کس جانب ہے اور کس طرح سے یہ عوام کو اپنے پارٹی کا منشور جو ہے وہ بتانے پر بتا رہے ہیں اور کیسا عوام کا رسپانس مل رہا ہے۔ میاں وقاص صاحب، مجھے بتائیے گا کیا رسپانس ہے عوام کا اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں آپ کا سیاسی حریف کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا
ये नौजवान बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमें इतनी इज्जत दी। हम जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो जमात है जिन्होंने हमेशा गरीब आवाम का साथ दिया। आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे इलाके में हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं और गली मोहल्लों में हमारे दफ्तर का इफ्तिताह भी हमारे दफ्तर ओपन कर रहे हैं। और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें नौजवानों की टीम मिलती है और हमें बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और 8 फरवरी के दिन इंशाल्लाह जो सूरज निकलेगा वो तीर का जीत का निशान लेके, कामयाबी का निशान लेकर सूरज तलू होगा इंशाल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे नौजवान क़यादत को जो है वो संभालने का मौका मिला है। जैसे ही मैं हल्के में निकलता हूँ तो नौजवानों का जो बहुत ज़्यादा रश जो है वो मुझे वेलकम करता है, जो कि मेरे हौसले को जो है वो। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका पावर शो। उम्मीदवार NA 117 अब्दुल अलीम खान, गजाली सलीम भट्ट, मलिक जमान नसीब की शिरकत। अब्दुल अलीम खान कहते हैं इलेक्शन में कामयाब हुए तो तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। बदामी बाग खोखर चौक पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका जलसा हुआ। अब्दुल अलीम खान उम्मीदवार PP 140, गजाली सलीम भट्ट, मलिक जमान नसीब समेत ताजुल बरादरी और अहले इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। NA 117 से उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान ने कहा, अल्लाह ने करम किया तो गजाली सलीम भट्ट के साथ मिलकर लोगों की खिदमत करूंगा। शहर में 30,000 घराने ऐसे हैं जिनको अलीम खान फाउंडेशन से राशन जाता है। नए कॉलेजेस, अस्पताल तरक्याती कामों के जाल बिछाएंगे, लोगों के मसाइल हल करेंगे। गजाली सलीम भट्ट का कहना था कि अलीम खान को नवाज शरीफ ने भेजा है, सबसे पहले अलीम खान को वोट डालें, सबसे पहले उकाब पर मोहर लगानी है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और राना मशहूद अहमद खान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग्स। शहरियों ने लीगी उम्मीदवारों के हिमायत का ऐलान किया। NA 129 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और PP 172 में उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान के एजाज में मुहाजिर आबाद में कॉर्नर मीटिंग्स हुई। सईद अहमद खान ने मीटिंग्स का एहतमाम किया। राना मशहूद अहमद खान ने कहा, 5 साल कबल एक तजुर्बा किया गया जो बुरी तरह नाकाम हुआ, बेरोजगारी हुई, मईशत तबाह हुई। शेर पर मोहर लगाकर तरक्की का नया सफर शुरू करना है। शहर में गैस की लोड शेडिंग, शहरी परेशान। टाउनशिप कोट ख्वाजा सईद के अहले इलाका का शदीद एहतजाज। शहरियों ने गैस की लोड शेडिंग खत्म करने और जायद बिल्स की दुरुस्तगी का मुतालबा किया है। गैस की लोड शेडिंग का खात्मा ना किया जा सका। टाउनशिप के मकीनों का सुई गैस की बंदिश और भारी बिल्स के खिलाफ शदीद एहतजाज। कहते हैं गैस नहीं आती और बिल हजारों में आ रहे हैं। टाउनशिप ब्लॉक 11 और 12 के मकीन सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुकने पर घरों से बाहर निकल आए और LPG सिलेंडर, सुई गैस के बिल्स हाथों में थाम कर शदीद एहतजाज किया। शहरियों ने शिकवा किया कि महकमा सुई गैस अपने ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक भी सुई गैस फराहम करने में नाकाम है। गैस न आने के बावजूद इस कदर जायद बिल भेज दिए गए हैं जिनको अदा करने की आम आदमी में सकत नहीं। महंगी LPG खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं, इजाफी अखराजात की वजह से परेशान हैं। मुजाहिरीन ने गैस की लोड शेडिंग के खात्मे और जायद बिल्स की दुरुस्तगी का मुतालबा किया है। हालात में संगीन हो चुके हैं। हमारे टाउनशिप में 11 लें, 12 लें, 8 लें, 9 ब्लॉक, पूरे टाउनशिप में गैस की जबरदस्त लोड शेडिंग है। गैस नहीं आ रही, लोग परेशान है, महंगी LPG ले रहे हैं। खुदाई की कसम, लोग अपने बच्चों का पेट काट के गैस की बिल अदा करें। जो पिछले साल 400 बिल आता था, अब 4,000 बिल आया। ये मेरे पे एक बिल है, 37,000 रुपए का बिल है। आदमी रो रहा है, कर्ज उठा रहा है, सूद पे पैसे ले रहा है कि सूद पे पैसे लेके बिल अदा करो। खुदा रहो, खौफ करो, यहाँ तो लोग बिल भी अदा करें, गैस ही मिल रही। हमारा मुतालबा है कि टाउनशिप गैस की लोड शेडिंग खत्म की जाए। कोट ख्वाजा सईद नूरावाला चौक के मकीन गैस न आने पर सरापा एहतजाज रहे। घरों में खाना ना पकने पर शहरियों का सब्र जवाब दे रहा है। कोट ख्वाजा सईद नूरावाला चौक के रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि गैस बिल्कुल नहीं आती, लेकिन भारी भरकम बिल जारी कर दिए जाते हैं। चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, सिलेंडर और महंगी लकड़ियों पर कब तक गुजारा करेंगे। मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकाला गया। लगना बार रहे ने गैस जरा दूसरा वो महंगा बहुत है, हाँ? तो बहुत मुश्किल पेश आ रही है। बिल तो बहुत आते हैं, हमने ये गैस बिल्कुल नहीं आ रही। हम इधर से लकड़ियां लेके बाल रहे हैं, वो भी बहुत महंगी हैं। ये दूसरी गैस है, वो भी बहुत महंगी है।
हमारे इलाके की सारा की सड़क टूटी फूटी है, 15 दिन हो गए आज से, बढ़ा कर नहीं जा रहे। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से नोटिस लेकर गैस की लोड शेडिंग का खात्मा कराने का मुतालिबा किया है। शहर के मुतअद्दिद इलाकों का सीवरेज निज़ाम जवाब दे गया। साफ पानी के भी मसाइल, अक्सर गलियों में बिजली के तारों के लटकते गुच्छे भी शहरियों के लिए दर्द सर की वजह बन चुके हैं। जन्नतगढ़ का सीवरेज निजाम खराब हो गया, गलियों में गंदा पानी जमा, गलियां टूट फूट का भी शिकार। रहायशियों का कहना है सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए गलियां तोड़ी गई थी, जिसके बाद मुरम्मत नहीं की गई, पानी की निकासी भी नहीं हो रही। बहुत परेशान है, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। अभी तक मुरम्मत नहीं किया है। एक दफा बुलडोजर आया, वो मिट्टी इकट्ठी करके कुछ ले गया, कुछ उधर ढेर लगा कर चले गए। उसके बाद आए कोई नहीं, पीछे थोड़ी सी टोटा जो है ना वो मरम्मत की है, बाकी आगे कुछ भी नहीं किया। PP 151 मनावा का इलाका मसाइल की अमाज का बन गया। सीवरेज निजाम खराब, ताजर और मकीन अजियत में मुब्तला। ताजर बरादरी का कहना है हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, गाहक यहाँ का रुख नहीं करते, इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील कर दी। मनावा के मकीन पीने के लिए साफ पानी को तरस गए। PP 151 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बहाल न होने से रहायशी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है अरसा दराज से प्लांट खराब होने की वजह से पानी मुयस्सर नहीं, आला हुकाम प्लांट बहाल करवाएं। चौधरी कॉलोनी समनाबाद में बिजली के हाई वोल्टेज तार इंतहाई नीचे लटकने लगे, किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा। अहले इलाका कहते हैं कई साल से खौफ में मुब्तला हैं, बच्चे गली में खेल नहीं सकते और ना ही हम बाआसानी गुजर सकते हैं। लटकते तारों का मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। अब आपको बताएं, आईजी पंजाब पुलिस दफातर की अपग्रेडेशन तजीनो आराइश के लिए पुरअज़्म डॉक्टर उस्मान अनवर का सीनियर पुलिस अफसरान के हमरा मुख्तलिफ थानों का दौरा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने खिदमत मराकज़ पुलिस दफातर का भी दौरा किया, मुख्तलिफ थानों में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया और जल्द तकमील बारे हिदायत भी जारी की। आईजी पंजाब ने पुलिस स्टेशन गार्डन टाउन गालिब मार्केट की इंस्पेक्शन की, मुकम्मल होने वाले काम का मुआयना किया, फर्नीचर समेत दीगर सहूलियात बारे हिदायत भी जारी की। आईजी पंजाब ने ज़ेरे तामीर पुलिस खिदमत मरकज शादमान का दौरा किया। पुलिस खिदमत मरकज शादमान के तामीराती काम 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म भी जारी किया। कुर्बान लाइन्स में तामीर होने वाले पुलिस अपार्टमेंट्स का भी दौरा किया। सीनियर पुलिस अफसरान ने तरक्याती कामों की पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस अपार्टमेंट्स कुर्बान लाइन्स जदीद मायार के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म जारी किया। ज़मीन.com के ज़ेर-ए-तमाम सजा प्रॉपर्टी सेल्स मेला, खरीदारों और सरमायाकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका ने ज़मीन.com के प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी का इजहार किया। ज़मीन.com की जानिब से PC होटल में प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। सीनियर डायरेक्टर सेल्स चौधरी लईक इफ्तिखार, सीनियर डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स अली रेहान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स फरूक मोहम्मद खान, एसोसिएट डायरेक्टर प्रोजेक्ट सेल्स मोहम्मद इलियास शरीक हुए। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तलत, बासिल हफीज समेत दीगर ने भी शिरकत की। तकरीब में शहरियों को ज़मीन.com के 40 से जायद पेश करदा मंसूबों से मुतालिक रहनुमाई फराहम की गई। इवेंट में ज़मीन.com के लाहौर में जारी 6 प्रोजेक्ट ज़मीन ओपल, ज़मीन जेड, ज़मीन फोनिक, ज़मीन क्वाड्रेंगल, क्यू हाइट स्ट्रीट, ज़मीन नियो को खूब पजीराई मिली। अली रेहान का कहना है कि इदारा मुसलसल इस काविश में है कि लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने वाले मंसूबे पेश किए जाएं। जमीन डेवलपमेंट के लाहौर के अंदर 6 प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, जिसमें से एक हमारा ज़मीन ओपल जो है वो डिलीवर हो चुका है और वो उसका पोजेशन दिया जा चुका है। वहाँ पर लोग हैप्पीली लिविंग स्टार्ट कर चुके हैं। ज़मीन औरम है दूसरा प्रोजेक्ट, जिसका कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो गया है और उसकी कम्प्लीट हम तकरीबन 8 से 10 माह के अंदर पोजेशन देने जा रहे हैं। फरूक मोहम्मद खान ने ज़मीन.com के मंसूबों पर तफसीली रोशनी डाली। इस तरह का इवेंट हम रेगुलर बेसिस के ऊपर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान में हम इस तरह के इवेंट्स मुनक्किद करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। इन इवेंट्स को करने का मकसद ये होता है कि अंडर वन रूफ, जैसे आज हम यहाँ मौजूद हैं, इस वक्त हम यहाँ पे 57 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं लाहौर शहर के। मोहम्मद इलियास ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, कम कीमत पर बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़मीन न्यू की अगर बात करते हैं हम, जैसे हम कलमा चौक से लिबर्टी वाली साइड के ऊपर आते हैं, सेंटर पॉइंट के सिग्नल से हम जैसे ही राइट लेते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये प्रोजेक्ट है ज़मीन न्यू का, जिसमें हमारे पास 1 बेड भी हैं, 2 बेड भी हैं और 3 बेड के हमारे पास लॉफ्ट अपार्टमेंट्स भी हैं। शुरका को प्रॉपर्टी से मुतालिक खरीदो फरोख्त की तमाम मालूमात एक छत तले फराहम की गयी। तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद ने ज़मीन.com की जानिब से पेश किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स को खूब सराहा। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42।